Good morning to all of you. I am Ashwani Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will discuss about the topic of class 12th business studies, the unit number 6 staffing and the chapter number 2 recruitment. In previous class I already discussed about the various source of the internal source of recruitment. Today I will discuss about the merits and demerits of the internal source of recruitment. So we will start about our class. First, the merits of internal sources of recruitment. There are various merits of the internal source of recruitment. First one is increase in motivation, industrial peace, easy selection, no need of induction, adjustment of surplus employees, and last one is the economical source. These are the 6 merit of the internal source of recruitment: increase in motivation, industrial peace, easy selection, no need of induction, adjustment of surplus employees, and economical source. Now we will discuss about the merits of internal source of recruitment one by one. The first merit is increase in motivation. It is the first merit of the internal source of recruitment. It motivates the employees to perform their task effectively as well as efficiently. How it is possible? Because every employees in the business organization know that there is a chance of promotion in the business organization, and the feeling of the promotion motivate the employees to perform their task effectively as well as efficiently to get promoted and to promote from lower level to the upper level. So the internal source provide that type of opportunity to the employees that they can be promoted in future from the डाउन लेवल टू अप लेवल. इंटरनल सोर्स में आपकी जितनी भी वैकेंट पोस्ट है वो सारी वैकेंट पोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फिल की जाएगी. इसलिए एम्प्लॉयज को मालूम है कि कभी भी फ्यूचर में कोई भी पोस्ट वैकेंट होगी तो उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा. तो इसलिए एम्प्लॉय इस फीलिंग से कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन के चांस है तो एफिशिएंसी से काम करते हैं. इसका मतलब वो मोटिवेट होंगे. इट इज द फर्स्ट मेरिट. नाउ द सेकेंड मेरिट ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट industrial peace. Industrial peace means there is no chance of any type of the dispute. In business organization, the various posts of the business organization will be fulfilled with the help of the internal source of recruitment. Everyone know about the vacant post will be filled with the help of the internal source, transfer, promotion as well as the any type of the source which can be used to fulfill the our requirement and filled our vacant post with the competent person which are available in the internal organization. So every person know about that there is a chance of promotion, transfer as well as promote in a from lower line to the upper line. If that type of the feeling motivate them as well as there is no any type of the dispute about the vacant post in the business organization and well as there is established a peace and the work will go on smooth way. ये आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की सेकेंड मेरिट है. इंडस्ट्रियल पीस, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप की इंफॉर्मेशन के बारे में आपके एम्प्लॉयज को मालूम है
कि जितनी भी आपकी वैकेंट पोस्ट होंगी वो सारी वैकेंट पोस्ट हमें इंटरनल सोर्स से ही फिल करनी है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे और हमेशा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो किसी भी टाइप का कोई डिस्प्यूट नहीं है, हर एम्प्लॉयज को पता है कि प्रमोशन के चांस है, तो वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करेंगे। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द internal source means merit of the internal source of recruitment is that easy selection. Easy selection means that there is no need to know about the employees who can be promoted in the business organization. मीन दैट आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट आपकी वैकेंट होगी उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए हमें किसी भी एम्प्लॉयज की कोई इंक्वायरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज के बारे में एवरी टाइप की इंफॉर्मेशन वी हैव रिसीव ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम ऑफ देयर पास्ट वर्क। हमें उसकी हर टाइप की इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम है, क्योंकि पास्ट में उसने जो भी वर्क किया है उसकी परफॉर्मेंस जो है हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली है। तो हमारी जो वैकेंट पोस्ट है हम इजीली आपकी बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हम उन वैकेंट पोस्ट पर कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी थर्ड मेरिट थी। नाउ द फोर्थ मेरिट ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट नो नीड ऑफ इंडक्शन। नो नीड ऑफ इंडक्शन का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को ही हम क्या करते हैं, या तो प्रमोट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्स ले ऑफ हो सकता है। तो एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपकी एम्प्लॉइज हैं प्रमोट ट्रांसफर ले ऑफ की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाते हैं, उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट को हम फिल करते हैं। अब ये जो भी एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर चुके, अब ऑलरेडी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर चुके तो उन्हें किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है कि उस पोस्ट पे अपॉइंट करने के बाद उनका सुपीरियर कौन होगा, उनका सबऑर्डिनेट कौन होगा, एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, एक्सेट्रा। तो एक टाइप से आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एक और मेरिट बनती है कि नो नीड ऑफ इंडक्शन, किसी भी टाइप का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉइज को ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्रमोट या ले ऑफ की हेल्प से वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज adjustment of surplus employee. It is the main merit of the internal source of recruitment because with the help of that merit the surplus employees can be adjusted from one department to the another department. Means in business organization if in one department and branch of the organization if there is a surplus employees according to their requirement, according to need, we can transfer such type of employees from the other department as well as the branch of the organization at the same level. मीन्स आपकी ट्रांसफर की हेल्प से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट ब्रांच में सरप्लस एम्प्लॉइज हैं तो ट्रांसफर की हेल्प से हम उसे अदर डिपार्टमेंट में अदर ब्रांच में सेम लेवल पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, जिस ब्रांच में आपके सरप्लस एम्प्लॉइज है वहां से एम्प्लॉइज को उठाया, वहां से उनको मूव किया और वहां पर पुट कर देंगे जहां पर आपकी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज है। ये आपकी फिफ्थ मेरिट थी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। नाउ द सिक्स्थ मेरिट ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज दैट इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्स का मीन्स है लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉस्टली। मीन्स इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जब भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोस्ट को फिल करते हैं तो वहां पर किसी भी टाइप के कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, किसी टाइप के आपके एक्सपेंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें किसी भी टाइप की सिलेक्शन की लेंथी प्रोसेस को यूज नहीं करना, ना ही हमें इंटरव्यू के ऊपर किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस करने हैं, और ना ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आप एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने वाले हो वैकेंट पोस्ट पर, तो उन अपॉइंट
पर्सन को हमें किसी भी टाइप की कोई ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हर वर्क के बारे में उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, हाउ विल टू परफॉर्म देयर टास्क इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So it is the economical source because there is no any type of the expense in the selection of the employees on the interview as well as the training. So it is the economical source of our organization. So today we discussed about the merit of the internal source of recruitment. So students, I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.